So next in continuation for the gamma ray spectroscopy, it is magnetic hyperfine splitting, or it is the G-Man effect that we are going to discuss. In the lower classes we have read about the G-Man effect, that there is a splitting of the spectral lines when magnetic field is applied. Electric field case we have discussed. So Stark effect and the G-Man effect both are being discussed here. Stark effect has been discussed in relation with the quadrupole effects, and now G-Man effect, it is in relation with the magnetic hyperfine splitting. Before moving to discuss the energy level, let us have a little review of the earlier discussion. These discussions were related wherever the quantum spin, it is more than half. Wherever it is half, this is hyperfine splitting, whether it is due to magnetic field or it is due to electric field, that is least concerned. So we are taking a case where the spin, it is 3/2. Now considering the ground state as well as considering the excited state. When we will consider the ground state is expected to have the half spin, because whatever the number of protons or neutrons there are existing, either there will be even or odd, or when they will be odd, then it will be 3/2 mostly, so, or it is half integral mostly. So whenever the ground state is there, then only one odd electron will be left, and that will have the half integral spin, and remaining they will cancel out. So that is the ground state spin. When we say about the excited state spin, for only considering the 3 protons or 3 particles, then each of them can have the half integral. So half plus half plus half, it can be 3/2. So it means the excited state can have the 3/2, or it can, and ground state, it will have the half spin. It is not necessary that the excited state will have the 3/2 spin. It may have plus half spin, or you can change the sign, minus half or minus 3/2. But generally the spin vary in the excited state. That case we have taken into consideration when we were discussing the quadrupole effect. Again I am taking the similar case for the magnetic hyperfine splitting. Here again the 2 states are being taken. So one is the ground state here, this one, and that is the excited state. The ground state can have the value half, and it can have the value 3/2 or 1/2. Whenever magnetic field is applied, then each of them is going to split. Now how it is going to split, let us see here. तो जो नीचे ग्राउंड स्टेट है उसमें हाफ स्पिन का एक स्टेट मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से प्लस हाफ होगी, दूसरी माइनस हाफ होगी. और जो एक्साइटेड स्टेट में जिसमें 3/2 भी पॉसिबल है और हाफ भी पॉसिबल है, तो या तो -3/2 माइनस हाफ, और प्लस हाफ और प्लस 3/2. NMR आपने पढ़ रखा है, उसमें आपको क्लियर था कि अगर स्पिन हाफ होगी तो उसकी 2 स्पिन स्टेट आएंगी, एक पॉजिटिव स्पिन के साथ, एक नेगेटिव स्पिन के साथ. तो ये आ गई ग्राउंड स्टेट के लिए. उसी तरह से एक्साइटेड स्टेट में डीजेनरेट स्टेट है पहले तो, लेकिन बाद में वो स्प्लिट हो गए. तो एक्साइटेड स्टेट में 3/2 और हाफ थी, तो -3/2 माइनस हाफ प्लस हाफ एंड प्लस 3/2. So these type of splitting of the energy level is there whenever magnetic field is applied. Now what are the selection rules? Selection rule says that the absorption or emission will be there provided change in the spin quantum number, either it is equal to 0 or either it is equal to ±1. या तो स्पिन क्वांटम नंबर में ±1 की चेंज आनी चाहिए, या कितनी होनी चाहिए, 0 होना चाहिए. Let us see the case where the spin quantum number changes by 1. So let me to tell you here, it is from -half to -3/2. The change of spin is delta I, it will be +1. It will be from +1 plus half to +3/2. Again the difference of these is, that is 1. Then
it is plus half to minus half, again difference is of 1. Then it is minus half to plus half, again it is difference of 1. So 4 lines are originated, or 4 lines in the spectrum are originated because of the selection rule that delta I is equal to plus minus 1. Then this is the line, blue line, that is indicating from plus half to plus half. It is delta I is equal to 0. Then minus half to minus half. It is again delta I is equal to 0. So according to selection rules, you will find 6 lines in the spectra. So spectra drawn here. So see, it is first, second, third, fourth, fifth and sixth. ये तो मैग्नेटिक हाइपरफाइन स्प्लिटिंग हो गई. तो इसमें मैग्नेटिक हाइपरफाइन स्प्लिटिंग में जो है वो एक्साइटेड स्टेट भी स्प्लिट हो रही है और ग्राउंड स्टेट भी स्प्लिट हो रही है. जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में जो था उसमें ग्राउंड स्टेट स्प्लिट नहीं हुई थी, बल्कि उसमें ग्राउंड स्टेट जो हाफ इंटीग्रल थी, जिसमें जो उसकी स्पेरिफिसिटी यानी वो पर्टिकुलर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का रह रहा है न्यूक्लियस में, तो वो स्प्लिट नहीं हो रहा है. लेकिन एक्साइटेड स्टेट स्प्लिट हो रही थी. लेकिन एक्साइटेड स्टेट में भी प्लस 3/2 माइनस 3/2 आर सेपरेटेड, दे वर डीजनरेट. माइनस हाफ एंड प्लस हाफ दे वर डीजनरेट. तो उसमें आपके पास जो है वो 2 ही 3 लाइनें जो है वो 2 ही लाइनें जो है वो आ रही थी. लेकिन इसमें आपके पास 6 लाइन्स आ रही हैं. पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में जो है, जिसमें हमने नाइट्रोपोसाइड आयन डिस्कस किया था, इन दैट केस देयर वाज ए इनहेरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द लिगेंड्स. जो लिगेंड्स हैं उनका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि एक साइड 3 आ जाएंगे साइनाइड आयन और दूसरी साइड 2 ही आएंगे. NO जो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो नहीं होना था, लिगेंड फील्ड नहीं होना था, जिसकी वजह से अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया. So the electric field is not applied from the outside, but that is inherent because of the ions present, because of the ligands present in the complex compound. Magnetic field, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है, वहां इनहेरेंट मैग्नेटिक फील्ड भी पॉसिबल है. जब मैग्नेटिक फील्ड इनहेरेंट भी पॉसिबल है तो ये अप्लाइड नहीं भी हो सकता है. लेकिन मोस्टली मैग्नेटिक हाइपरफाइन स्प्लिटिंग जो है वो वेरीफाई होती है बाय द अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड. बट मोस्टली स्टार्क इफेक्ट, दैट इज स्प्लिटिंग ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, और क्वाड्रपोल इफेक्ट, दैट आर ऑलरेडी प्रेजेंट ड्यू टू द इनहेरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट इनसाइड द मॉलिक्यूल. मैग्नेटिक फील्ड भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, तो दोनों की जो है ट्रांजिशंस जो है, डेल्टा आई इज इक्वल टू 0 एंड डेल्टा आई इज इक्वल टू प्लस माइनस 1. तो इस तरह से लाइंस जो हैं वो आपस में ओवरलैप भी कर सकती हैं, क्योंकि जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी स्प्लिट हो रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी स्प्लिट हो रही हैं. तो यूजुअली हमारे पास ओवरलैप जो है वो स्पेक्ट्रा आता है, और जो ऊपर स्पेक्ट्रा डिस्कस किया उस तरह का स्पेक्ट्रा ना रह के बीच में 1-2 लाइनें जो है 3 लाइनें वो आपस में ओवरलैप्ड आती हैं. दिस इज ड्यू टू द मिक्स्ड इफेक्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड. सो व्हाई दिस योर चैप्टर, द फर्स्ट सेक्शन, दैट इज द रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, दैट एंड्स. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट डिस्कशन, एंड it is the rotational and the vibrational spectra. So rotational lines, मॉलिक्यूल जो है, पहले न्यूक्लियस की बात हो रही थी, अब आएगी बात मॉलिक्यूल की. उसमें जो है पीछे जितनी भी डिस्कशंस की, इट वाज रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉन, इट वाज रिलेटेड टू द न्यूक्लियस, it was related to the some type of resonance. Which type of resonance? Whatever the frequency with which something is oscillating, same frequency is to be applied in order to have the resonance. Now in case of rotational spectra, a molecule, it can be set into the rotational energy. Why the application of some radiation? जो है वो molecule को rotation में जो है वो set किया जा सकता है. The rotation जो है वो किसी तरह की भी हो सकती है. For example, this molecule, it is rotating, and the second molecule here, that is again rotating. So the rotation is along the different axis,
इसमें जो एक्सिस इस बॉन्ड के परपेंडिकुलर आ रही है और इसमें जो है एक्सिस जो है वो अलोंग द बॉन्ड आ रही है। तो इसका मतलब जो रोटेशनल एक्सिस है वो अलोंग द बॉन्ड भी पॉसिबल है और वो परपेंडिकुलर भी पॉसिबल है। इसको हम, ये जो रोटेशन है, इस रोटेशन को हम एंड टू एंड रोटेशंस बोलते हैं। एक एंड से दूसरे एंड तक रोटेट हो रहा है, जैसे नीचे वाला एंड ऊपर वाले एंड की तरफ जा रहा है। यहां ये एंड टू एंड रोटेशन नहीं है। जो ऊपर वाली रोटेशन है अलोंग द एक्सिस ऑफ बॉन्ड, मोस्टली ये लीनियर मॉलिक्यूल है, तो इस तरह की रोटेशन को जो है वो कंसीडर नहीं किया जाता है। रीजन बीइंग दैट इज नॉट गोइंग टू अल्टर एनी टाइप ऑफ रोटेशनल लेवल्स ऑफ द एनर्जी रोटेशनल एनर्जी लेवल ऑफ द मॉलिक्यूल। What this type of motion which is being exhibited here by the molecule, this one, that changes the rotational energy level of the molecule. अब ये रोटेशनल एनर्जी लेवल्स कहाँ होते हैं? पहले तो आपने इलेक्ट्रॉनिक लेवल सुने हुए हैं कि एक इलेक्ट्रॉन एक लेवल से दूसरे लेवल तक जंप करता, वो इलेक्ट्रॉनिक लेवल आ गए। इलेक्ट्रॉनिक लेवल जो है दैट इज कंपोज्ड ऑफ द वेरियस वाइब्रेशन लेवल्स, उसमें वाइब्रेशन लेवल होते हैं। And one vibration level is composed of the rotational level. It is very less energy that is required, very large energy that is required for the excitation of the electron. It is lesser energy that is required to the vibrate the molecule, and it is the minimum energy that is required to set a molecule into the rotation. तो रोटेशन के लिए जो है वो बहुत कम एनर्जी लगती है, वाइब्रेशन के लिए थोड़ी सी ज्यादा लगती है, और इलेक्ट्रॉनिक लेवल को चेंज करने के लिए एनर्जी और ज्यादा लगती है। रोटेशन जो है वो डिफरेंट एक्सिस के अलोंग पॉसिबल है। अलोंग द एक्सिस ऑफ बॉन्ड अगर लीनियर मॉलिक्यूल डिस्कस करते हैं, और अलोंग द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, परपेंडिकुलर भी दो हो सकते हैं। अगर इन एक्सिस को नहीं कंसीडर करना है तो सिंपल आप कंसीडर कर सकते हैं यहां पर अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द वाई एक्सिस एंड अलोंग द जेड एक्सिस। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर वट एवर इट इज, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो डिफरेंट डायरेक्शंस में लीनियर मॉलिक्यूल के लिए डिफरेंट हो सकता है। अलोंग द बॉन्ड एक्सिस अगर हम बात करें कि रोटेशन हो रही है, तो जिस तरीके से ये रोटेशन शो की है, तो इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो जनरली कितना कंसीडर होता है? 0 कंसीडर होता है। कितना कंसीडर होता है? 0। ए एक्सिस क्रॉसिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर, पेपर के परपेंडिकुलर में जो है वो अगर आप ड्रॉ करते हो तो रोटेशन जो एंड टू एंड होगी, हाइड्रोजन क्लोरीन की तरफ और क्लोरीन हाइड्रोजन की तरफ आएगा। देन दैट टाइप ऑफ रोटेशन, that in that case moment of inertia is considerable because the rotational is having some rotational energy levels. Axis on the plane of the paper but perpendicular to the bond length, तो बाई एक्सिस के अलोंग अगर मैं एक्सिस कंसीडर करता हूं तो भी एक्स वाई प्लेन में जो वो HCl का मॉलिक्यूल क्या करेगा? रोटेट करेगा। तो इसमें थर्ड एक्सिस के अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो भी क्या होगा? कंसीडरेबल होगा। एक लीनियर मॉलिक्यूल के लिए जो है वो x along the bond axis moment of inertia is 0, and along the axis which is perpendicular to the bond moment of inertia is considerable, and generally this second type and this third type both moment of inertia they are being considered equal. ये रोटेशन भी और ये रोटेशन भी जो वो इक्वल कंसीडर होती है, जबकि बॉन्ड लेंथ के अलोंग जो है उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 कंसीडर करते हैं। We discuss different type of the molecules: symmetric, asymmetric and spherical top molecule. What are these? Consider this type of molecule. This is a मिथाइल फ्लोराइड। तो इसमें फ्लोरीन एक साइड है, इसका वेट अलग होगा, हाइड्रोजन का अलग होगा, तो ऑटोमेटिकली रोटेशन जो है वो अलग अलग बॉन्ड से जो है वो अलग अलग पॉसिबल है। अगर मैं इसमें एक्सिस कंसीडर करता हूं एंड आई कंसीडर द एक्सिस अलोंग द CF बॉन्ड, तो CF बॉन्ड में अगर एक्सिस है इस बॉन्ड के अलोंग, तो ये 3 हाइड्रोजन की रोटेशन से कंसीडरेबल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। पीछे 2 ही एटम थे, वी वर हैविंग द 2 हाइड्रोजन एंड क्लोरीन लीनियर मॉलिक्यूल, बट दिस इज द केस ऑफ नॉन लीनियर मॉलिक्यूल वेयर वी आर हैविंग द टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, एंड इन दिस स्ट्रक्चर वन ऑफ द बॉन्ड CF बॉन्ड इज टेकन, देन दीज 3 हाइड्रोजन, एक जैसे छाता होता है तो अम्ब्रेला की एक
हैंडल को कंसीडर कर लीजिए और नीचे अम्ब्रेला का पोर्शन में 3 हाइड्रोजन कंसीडर कर लीजिए. सो व्हेन यू विल रोटेट इट विल हैव सम मोमेंट ऑफ इनर्शिया. So that moment of inertia along the bond that is considerable. In this case, IA is not equal to 0 and IA is not equal to IV is equal to IC. इसका मतलब जब आपके पास नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है और नॉन लीनियर मॉलिक्यूल में भी आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी एक्सिस के अलॉन्ग 0 नहीं आ रहा है और कंसीडरेबल आ रहा है, then this type of molecule is termed as the symmetric top molecule. क्या बोलते हैं इसको? symmetric top molecule. इसमें एक और एग्जांपल यहां पर मैं कोट कर रहा हूं, बोरोन ट्राइक्लोराइड का. सो BCl3. In this case again, IA is not equal to 0, but there may be a possibility that IV is equal to IC but greater than IA. Means bond के along जो है वो moment of inertia कम हो, लेकिन बाकी दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल हो, बट दे आर ग्रेटर देन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द बॉन्ड एक्सिस. और अनदर केस में बी देयर दैट IV इज इक्वल टू IC बट दे आर लेसर देन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द बॉन्ड एक्सिस. तो इस तरह का केस जो बोरोन ट्राइक्लोराइड का आता है, इसमें जो IA मीन्स बोरोन और क्लोरीन के अलोंग अगर हम इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंसीडर करें, दैट इज ट्वाइस टू द IV एज वेल एज IC. देन थर्ड टाइप ऑफ मॉलिक्यूल हियर इन द डिस्कशन, इट इज द मीथेन मॉलिक्यूल. सो दिस इज सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल एंड फॉर दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल IA इज इक्वल टू IV इज इक्वल टू IC. तीनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया तीनों एक्सिस के अलोंग जो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. There may be a case that none of the moment of inertia is equal in a non-symmetric molecule. Then we say it is a asymmetric type of molecule. So categorization, that is termed as a symmetric top 1. Then this is second one, it is termed as a symmetric top. Third one, where all are equal, we say it is spherical top. And when none of them is equal, it is termed as the asymmetric top molecule. क्या बोलते हैं इसको? Asymmetric top molecule. Remaining discussions will be continued in the next lecture.